Hello everyone, this is your English mentor Harsh Pratap Singh. Once again, I welcome all of you in such a wonderful session of CAPF Paper 2 where I will be discussing some amazing questions of how to rewrite the sentence. Cause in yesterday's class, what I told you about all the syllabus of CAPF Paper 2, what type of questions are coming in your examination, especially in English section, reading comprehension, press C, rewrite the sentences, phrasal verbs, and how to write the sentence without any unnecessary changes. These are the important points of your examination. So in yesterday's class, I told you if you see my all the lectures very carefully, you can easily score 55 plus out of 60 marks. I'm talking about comprehension, Prezi, and these grammar sections. You can easily score 55 plus out of 60. Let's start. Today I'm gonna discuss CAPF Paper 2 2024. Rewrite the sentences as directed. कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ sentences आपको दिए जाएंगे और जो डायरेक्शन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है. अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज द वॉइस. कल के भी सेशन में आपने देखा था एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया था और आज के भी सेशन में आप देख रहे हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है. मतलब ये टॉपिक स्ट्रांग है, आना ही आना है यहाँ से भाई. आपको टॉपिक स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होंगे ही होंगे. मैं आपको बेसिक लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपकी डिमांड आएगी तो एक्टिव पैसिव वॉइस की. बट लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली. Your behavior greatly astonishes me. Your behavior, this is your what? Subject, right? Astonishes is your verb. V1 plus ES, right? And what is object? This is your object. So if you look at this sentence very carefully, you find what kind of structure is this? This structure belongs to present indefinite tense. How can we identify present indefinite tense? Whenever we see subject plus V1 plus S or ES plus object, it means this structure denotes present indefinite tense. And you need to convert it into passive voice. कल मैंने आपको बताया था कि passive voice how we recognize. Whenever we see B plus V3, B means B forms like is, am, are, was, were, B plus V3. So whenever you see V3 after B forms, that sentence denotes कि वो चीज किस में है, पैसिव वॉइस में. बट यहाँ पर बी फॉर्म नहीं है, मतलब ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है, आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. तो जब भी कभी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय यू नीड टू राइट इट लाइक दिस: ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, आई मीन बी फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट. This is your passive voice structure of present indefinite tense, right? So whenever you put this object in a given sentence, you need not to write the same thing, because you are writing a sentence and the sentence starts with the subjective case. So the subjective case of me will be what? I. And with I, you use am, right? I am verb की third form. What is verb here? Astonish. Astonish is your verb here, right? Astonish is your verb here. So it should be I am astonished. मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर जाते हैं आगे. उनको पता है कि पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते टाइम बाई लगाते हैं, यहीं पर उनसे गलती हो जाती है. और एग्जामिनर बहुत क्लेवर है. ये जो वर्ब है एस्टोनिश, ये अपने साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है एट. I am astonished at your behavior. और मैक्सिमम स्टूडेंट पता है क्या लिख करके एग्जाम्स में चले आए थे, एग्जाम्स में लिख करके चले आए थे I am astonished by your behavior. वो रॉन्ग आंसर हो जाता है. तो I am astonished at your behavior will be the right passive voice of this given sentence. Point clear? So first of all, you need to identify that particular sentence is in active voice or in passive voice. So when you recognize
this sentence is inactive, then immediately you should implement the structure to convert passive voice, and the structure of present indefinite tense passive voice is written here. So just we implemented this concept and the answer is yours. I am astonished at your behavior. Point clear? आया ना, नोट डाउन कर सकते हैं आप कॉपी में. अब बात आई कि आप यूपीएससी की प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए सीएपीएफ बहुत आसान होगा. लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपीएससी की प्रिपेयर करने वाले लोग ही 2024 के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन में लिख करके चले आए थे, आई एम एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर, क्योंकि उनको लगता है ना यार इंग्लिश तो बहुत आसान होती है. बट अगर आप एक नंबर इसमें रॉन्ग कर दे रहे हैं मीन्स आप फाइनल मेरिट से आउट हो रहे हैं. पॉइंट क्लियर? और आपको ये सोचना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. लास्ट आपने देखा 2025 का जो पेपर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, उसमें भी है और 2024 वाले में भी है. नाउ मूविंग अहेड, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 6. सेकंड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. उसने कहा था कि इस समय मैं अगले साल कहाँ होऊंगा. एंड यू राइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर कट मेंशन है कि आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब डायरेक्ट दे रखा है. कुछ टर्म जो मैंने आपको बताया था कल भी और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉपी में इसको लिख सकते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब इज व्हाट? से, says and said. This is your reporting verbs. You must know the terms of English. What is reporting verb? Say, says, said. Sometimes you will see he's, they say, comma, inverted comma. Sometimes you will see he says, comma, inverted comma. Sometimes you will see he said, comma, inverted comma. तो जब भी मैं बोलूं रिपोर्टिंग वर्ब, तुम्हें समझ जाना है कि मैं किस टर्म की बात कर रहा हूं. ठीक है? ओके. आप इसको बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं लाइक दिस कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है. ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अब इसको बॉक्स में बंद कर लो. दिस इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ही सेड. तो जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब आपको सेड दिखती है ना, जब भी कभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिखती है, तो सेड को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम, व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सेड ही रहता है, ये सेड ही रहता है. एंड व्हेनेवर यू सी सेड टू, इसको हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में. एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, सेड टू को हम सेड टू में ही लिखते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये होगा टोल्ड. ठीक है? नो इशू. एंड अगर आपको कभी दिखे सेज टू, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल्स. करेक्ट? एंड इफ यू सी से टू, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल. पॉइंट क्लियर? इसको कॉपी में आप लिख सकते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं. सो कन्वर्जन का हमें बेसिकली ख्याल रखना होता है कि सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, सेज टू को किस में चेंज करेंगे, से टू को हम किस में चेंज करेंगे. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पॉइंट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, लुक, अब चेंज करते हैं. ही सेड कॉमा वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. आपको कभी कभी इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को हमें समझना होगा. एंड एक टर्म मैं आपको और लिखवा रहा हूं, इनसाइड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इनसाइड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर का जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. पॉइंट क्लियर? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. नेक्स्ट पॉइंट, आउटसाइड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाहर की जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. तो ये टर्म्स एक बार आप अपने कॉपी में लिख लीजिए. इनसाइड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. एंड आउटसाइड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. ये पॉइंट जरूर लिख लें आप, क्योंकि जब मैं डिक्टेट करूंगा उस समय आपको
समझने में आसानी होती। अब आइए देखते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय मैं अगले साल कहां होऊंगा, मतलब कुछ आश्चर्यचकित वाली बातें कर रहे हैं। तो यहां पे हम सेड का सेड नहीं लिखेंगे, हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ही वंडर्ड, ही वंडर्ड। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डब्ल्यू एच फैमिली मीन्स वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इससे अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, हम एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज क्या, वही डब्ल्यू एच फैमिली, ही वंडर्ड वेयर। एंड नाउ अब यहां पे थोड़ा आपको अलर्ट होना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, कभी भी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं अगर बिटवीन द सेंटेंस आपको डब्ल्यू एच फैमिली दिखती है। लाइक मैं आपसे बोलूं वेयर आर यू गोइंग, तो डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है, आफ्टर दैट यू कैन इंप्लीमेंट हेल्पिंग वर्ब। बट अगर डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आपको दिख रही है, लाइक दिस, सेंटेंस के बीच में, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट यहां पर है। एंड कल की क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, 1 2 3 सन, where first person will change according to subject, second person will change according to object, third person no change. तो first person will change according to subject, it will be what, where he, now। अब आप देखो सेंटेंस आपने पास्ट में शुरू किया है, तो will का पास्ट would, where he would be। and always remember my one point, always अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये पास्ट में ही है, पास्ट टेंस मतलब, तो हमेशा हम दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं। और नेक्स्ट ईयर का मतलब द फॉलोइंग ईयर, वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर। पॉइंट क्लियर, द फॉलोइंग ईयर। तो he wondered where he would be that time the following year, तो this would be the proper conversion। पॉइंट क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स हिडन थे जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। डन। समटाइम्स हियर को देयर में करते हैं, दिस को दैट में करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में करते हैं, अगो को बिफोर में करते हैं, नाउ को देन में करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैं लिखवा भी देता हूं आपको। आप यहाँ पे लिखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, इफ reporting verb is in past, you should change this like, ये मत लिखो you should change this, you should change लिखो बस। if reporting verb is in past you should change this को हम किस में चेंज करेंगे, that में, this को हम चेंज करते हैं that में, now को चेंज करते हैं then में, here को चेंज करते हैं there में, and tomorrow को हम चेंज करते हैं the next day में, the next day, and sometimes on the morrow, on the morrow भी हम लिखते हैं, on the morrow में। और बताओ, yesterday, yesterday को हम चेंज करते हैं the previous day में, yesterday को हम चेंज करते हैं the previous day में। पॉइंट क्लियर। और ago को हम चेंज करते हैं before में, ago को हम चेंज करते हैं before में। ठीक है, this that now then here there,
समटाइम्स एक और होता है हीथर्ड, हीथर्ड आता है पेपर में, उसको हम चेंज करते हैं थीथर्ड में, जिसका मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। आगो को बिफोर में, हीथर को थीथर्ड में, हीथर का मतलब इधर, थीथर का मतलब उधर, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर ले प्लीज। ठीक है, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे यहां से क्वेश्चन ना आए। एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। एक स्टेटमेंट है कि एज सुन एज शी रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड। अब कह रहे कि आपको इसको कन्वर्ट करना है नो सूनर देन का यूज करके। कल मैंने आपको बताया था कुछ पेयर होते हैं, नो सूनर देन, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बताया था ईदर और, नीदर नॉट। उसी तरीके से एक पेयर होता है नो सूनर देन। इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम ग्रामर में, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, इनका कहना है कि आप इसका यूज करके स्टेटमेंट बनाओ इसको। तो हम किस तरीके से यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन पेयर होता है। नो सूनर अगर इस स्टेटमेंट शुरू होता है, ये फिक्स है कि ये अपना पेयर हमेशा क्या लेता है, देन लेता है, हमेशा। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा देन की जगह देन लिख देता है। अब स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर में वो देन को देन ही पढ़ रहा होता है, बट वो गलत होता है। आ जाओ देखते हैं कैसे। मैं आपसे बोलूं कि किस तरीके की फॉर्मेशन हो सकती है, तीन ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता। जैसे कि अगर नो सूनर से स्टेटमेंट कभी भी शुरू होता है, पेयर तो देन होना ही चाहिए, राइट। और इसके बीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आप एक इंप्लीमेंट कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस, और देन के बाद आप क्या लगा सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट, नो सूनर से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद अगर आप पेयर देखोगे, पेयर तो होना मस्ट है ही, देन इन दोनों के बीच में एक टेंस आप और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और देन के बाद आप लगाओगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। एंड एक तीसरा फॉर्मेशन इसका होता है कि अगर सेंटेंस नो सूनर से शुरू है और पेयर आपको देन तो लगाना ही लगाना है, इसके बीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, और देन के बाद भी आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ नो सूनर देन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसको आप लिख लो फास्ट। तो स्टेटमेंट अगर कभी भी नो सूनर से शुरू होता है, पेयर तो देन लगाना ही लगाना है। अब इसके बीच में जो आप टेंसेस लगाते हो, नो सूनर और देन के बीच में, ये तीनों जो इंप्लीमेंट करते हो, ये तीनों इन्वर्जन फॉर्म के होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इन्वर्जन क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन, आज देखते हैं इन्वर्जन क्या होता है। व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग हेल्पिंग वर्ब, पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट is called inversion, is called inversion, is called inversion। Putting helping verb before subject is called inversion। मतलब
अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टेंस किसका स्ट्रक्चर है, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, राइट? किसका स्ट्रक्चर है डियर? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और इसी पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर मैं बोलूं कि इसका आप इन्वर्जन बना दो मेरे को, इन्वर्जन, इन्वर्जन की डेफिनेशन सामने क्या लिखी है? पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होता है, क्या हो जाएगा? हैड, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, दैट्स इट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है और कुछ खास नहीं होता। ठीक, इसको लिख लो कॉपी में फास्ट। इसको लिख लीजिए कॉपी में फास्ट एवरीवन। ओके कूल, डन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे सीधे। As soon as she reached her home, the messenger arrived। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, नो सूनर, नो सूनर से हमें बनाना है स्टेटमेंट को। नो सूनर हैड शी। अब देखो एक बार जरा चेक करना, यहाँ पे एज सुन एज शी रीच्ड है, शी रीच्ड हर होम लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ा टास्क आएगा कि नो सूनर देन तो हम लगा देंगे, लेकिन बीच में कौन सा टेंस रखें, किस टेंस का इन्वर्जन होना चाहिए ना, किस टेंस का इन्वर्जन होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि सर जो आपने ये बताया मुझे अभी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे टेंस कौन सा हुआ, यहाँ पे कौन सा टेंस हुआ, आप मुझे बताओ। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस होता है? स्ट्रक्चर इसीलिए जानना बहुत जरूरी होता है टेंस का हमें। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इन्वर्जन जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पॉइंट क्लियर? किसका बनाएंगे? ये वाला पॉइंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इन्वर्जन बनाएंगे। किस तरीके से हम लिखेंगे आइए देखते हैं। नो सूनर, नो सूनर, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तुम्हें इसका इन्वर्जन बनाना है, इसका तुम्हें क्या बनाना है? इन्वर्जन बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लोगे आप? डिड लोगे, राइट? और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या लोगे? शी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगा। अब वर्ब यहां पर क्या लिखोगे आप? रीज्ड नहीं लिखोगे। हमेशा एक पॉइंट जानना, तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज और डिड। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नो सूनर, नो सूनर डिड शी, so you have to write V1 form, did she reach her home। अब उसके बाद कॉमा, कॉमा की जगह में क्या लगा देना है? देन। और देन के बाद देखो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, देन द मैसेंजर arrived, then the messenger arrived। this will be the proper structure of no sooner than। तो no sooner did she reach her home then the messenger arrived। आपने देखा no sooner के साथ, ध्यान से देखो, no sooner के साथ आपने पेयर क्या लगाया? then लगाया। और इसके बीच में आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इन्वर्जन भी लग गया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। और देन के बाद आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डन। सो दिस विल बी द प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ नो सूनर देन। अगर यहाँ पे शी हैड रीच्ड होता तो हम कैसे लिखते? नो सूनर हैड शी रीच्ड होम। पॉइंट क्लियर? अगर यहाँ पे होता एज सून एज शी रीचेज हर होम, तो हम क्या लिखते? नो सूनर डज शी रीच हर होम। सो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, एड अ सुइटेबल क्वेश्चन टैग। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, एक बार देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में बस दो ही चीज होती है, ध्यान से सुन लेना, कभी गलत नहीं होगा। फर्स्ट, अगर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। दूसरा, अगर कभी भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, अगर कभी भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब जस्ट उल्टा, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, और पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस गिवन सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट। देखो, तो पॉजिटिव का क्या बना, नेगेटिव, और ये देखो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में बस नॉट हटा दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन क्या था एक बार ध्यान से सुनो। क्वेश्चन था तुम्हारा, he walks in an awkward fashion, he walks, he walks in an awkward fashion, awkward fashion, ये था क्वेश्चन टैग तुम्हारा। यहां पे आपको फिल करना है, तो आप ये देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। V1 के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, जो कि लिखा हुआ है। और पॉजिटिव भी है कि वो चलता है ऑकवर्ड फैशन में। नॉट तो कहीं नहीं है, ना कोई नेगेटिव वर्ड है इसमें। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे देखो नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसको डिनोट करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। अभी पढ़ करके हम आए थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू और डज। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज लेते हैं, प्लूरल होता है तो डू लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप लोगे डज और नॉट। इसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा इस तरीके से लिखा करो, डजंट। डू होता, अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब होता तो हम डोंट लगा देते। पॉइंट क्लियर। डजंट और सब्जेक्ट क्या है, देखो ही, डजंट ही, दैट्स इट। कितना आसान है। अब किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, किसी भी तरीके का, बस ये दो की पॉइंट्स याद रखना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। सेंटेंस पढ़ो, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। समटाइम्स आपको वो हेल्पिंग वर्ब दे देता है, और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वो दे देता है तो और आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, डन, ओके, चलो ये भी पॉइंट क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। अब प्रीपोजिशन जब भी आपसे पूछेगा तो समझ लेना 1 सेकंड का आंसर है। माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स डैश मी, कन्फाइड्स इन मी। राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, इन। कन्फाइड के साथ क्या लगाते हो, इन लगाते हो। तो इट्स प्रीटी इजी, आगे आओ। ऐसे क्वेश्चंस में अलर्ट रहना। कह रहा है ही विजिट्स मी रेयरली, वो कभी कभार ही मेरे पास आता है, मुझे विजिट करता है। अब डायरेक्शन देखो, कह रहा है चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको नेगेटिव में चेंज करना है बिना मीनिंग को बदले। कल भी एक क्वेश्चन सेम ऐसा मिला था, तो आ जाओ देखो। कह रहा है वो मुझे विजिट करता है कभी कभार, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ही, मीनिंग सेम होनी चाहिए और नेगेटिव बनाओ। ही डजंट विजिट। अब देखो यहाँ पे मैं विजिट्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने डज लगा दिया है। ठीक है, मैंने डज लगा दिया है, और डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डजंट विजिट मी ऑफन। अब एक बार दोनों का मतलब आप निकालो जरा। पहले लिखा था ही विजिट्स मी रेयरली, कि वो मुझे कभी कभार मिलता है, कभी कभार विजिट करता है। और दूसरा मैंने क्या लिखा बिना मीनिंग चेंज किए, ही डजंट विजिट मी ऑफन, कि वो मुझे प्राय विजिट नहीं करता है। दोनों का मतलब तो सेम हुआ ना, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। मीनिंग मस्ट बी सेम, और वर्ब का ख्याल रखना, सब्जेक्ट का ख्याल रखना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी देखो आपने क्या लगाया, सिंगुलर। एंड आफ्टर डू डज डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। पॉइंट क्लियर, ओके। नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7।
ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कि वो इतना चालाक है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, कि वो विश्वास के लायक नहीं हो सकता। वो इतना चालाक है कि वो विश्वास के लायक नहीं हो सकता है। कह रहा है कि इसका इस्तेमाल करके बनाओ टू टू का, टू टू का इस्तेमाल करके बनाओ। ऐसे सेंटेंसेस आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, ये एक सेंटेंस है, राइट? इसको ओपन कैसे करोगे आप? इसको ओपन कैसे करते हैं? जब भी कभी आप टू टू देखते हैं, एक तरफ टी डबल हो एक तरफ टी सिंगल हो, जब भी कभी आप ये पेपर, जब भी कभी आप ऐसे पेयर देखते हो टू टू, तो इसको हम ओपन करते हैं सो दैट लगा करके, ऐसे ओपन करते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो आपने देखा यहां पर क्या देखा आपने डियर? आपने ये देखा कि टू टू को हम सो दैट से ब्रेक करते हैं और बाद में एक नॉट का वर्ड भी आता है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। आपके पेपर में इसी को रिवर्स कर दिया, उसने ये फॉर्मेट आपको दिया है और आपसे बोला है कि हमें इसका यूज करके बनाओ, इसी दिए हुए सेंटेंस को टू टू लगा करके बनाओ। आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया। अब आ जाओ देखते हैं तुम्हारा एग्जाम्पल जो है क्या है। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ही इज टू क्लेवर, he is too clever to be to be trusted। ऐसे में लिख सकता हूं, देखो, he is too clever to be trusted। तो जब इसको आप ओपन करोगे तो he is so clever that he cannot be trusted, इस तरीके से इसका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा। he is too clever to be trusted। तो ये देखो टू टू हो गया, राइट? जब इसको इसने ओपन किया था तो so that लगा के बनाया था। Done? And this is very important as far as CAPF examinations are concerned, very important। Done? Now, moving ahead towards question number 6th. Yes, I think 8th. Yes, 8th question. Look, neither of the plans suits him. Choose the correct option। कह रहा है सूट होगा कि सूट्स होगा। मैं आपको बताता हूं, कभी भी एक पॉइंट लिखो कॉपी में, कभी भी अगर सेंटेंस तुम्हारा लिख लो आएगा पेपर में आपके, आइदर ऑफ से शुरू होता है या फिर नाइदर ऑफ से शुरू हो, ठीक है? इसके बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है? इसके बाद हमेशा वर्ब हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर। आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, इफ नाइदर ऑफ कॉमा आइदर ऑफ आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ आइदर ऑफ कॉमा नाइदर ऑफ आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। वर्ब मस्ट बी सिंगुलर कंपल्सन है। तो तुम्हारा एक क्या हो गया, ये एक तुम्हारा कंसेप्ट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक पूरा कंसेप्ट हो गया, पेपर में सीधा आता है एग्जाम में। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ इधर। तो कैसे लिखोगे? नाइदर ऑफ, ये देखो सब्जेक्ट है तुम्हारा। एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन, वो कैसा होता है? वो प्लूरल होता है। और इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है? वो प्लूरल होता है। तो नाउन या प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल होगा, वर्ब आएगा तो सिंगुलर होगा। पॉइंट डन। अब आ जाओ देख लो इस क्वेश्चन को। नाइदर ऑफ, और ये आर्टिकल है, ये तुम्हारा नाउन है, तो नाउन कैसा है? प्लूरल है। आर्टिकल के बाद ही नाउन आता है। नाउन देखो प्लूरल है, कंडीशन सेटिस्फाइड। वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि सिंगुलर वर्ब कैसी बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? एस और एस लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगेन यहां से भी आपको फॉर श्योर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 110%। नाउ
क्वेश्चन नंबर 9, तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। जैसे ही आप मोस्ट देखते हो और आर्टिकल उसके पहले क्या है, द है, तो द के बाद अगर डिग्री कोई आती है तो वो सुपरलेटिव आती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो द के बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे सुपरलेटिव है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करके बनाओ सेंटेंस को। कैसे हम लिखते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर कभी भी एक ही लड़की की बात हो इंटेलिजेंसी की, तो हम ऐसे लिखते हैं, तान्या इज मोर इंटेलिजेंट than any other girl in the class, than any other girl in the class. This is your comparative degree. Point clear? एंड कंपैरेटिव डिग्री कैसे पता चला? मोर, मोर के साथ क्या है? देन। तो तानिया इज मोर इंटेलिजेंट, कि तानिया सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, देन। अब मोर का पेयर क्या होता है? कंपैरिजन को शो करने के लिए हम देन लगाते हैं। देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, क्लास में कोई भी दूसरी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तानिया है। तो ये चीज शो करती है मोर देन कंपैरेटिव डिग्री को। तो आप ऐसे लिख सकते हो। आपके पेपर में ये आ जाएगा कि ये सेंटेंस दे देगा, कंपैरेटिव बोलेगा सुपरलेटिव में करो, तो कंपैरेटिव का सुपरलेटिव आपके सामने लिखा हुआ है, तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ so we have finished 9 question out of 10. Out of 10 we have finished 9 question. Look at your question number 10 now. Deep snow dash lay on the railway track. Okay. डीप स्नो डैश, अब ये आपको फिल करना है, लेड होगा कि ले होगा, आपको पता होना चाहिए। टू लाई, टू लाई ये क्या है? इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका पास्ट क्या होता है? इसका पास्ट होता है ले। क्या होता है इसका पास्ट? ले होता है। और टू लाई का मतलब क्या होता है? टू बी इन हॉरिजेंटल पोजीशन, टू बी इन हॉरिजेंटल पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन। और टू लाई की जगह हमें क्या लिखना है? पास्ट लिखना है। टू लाई का वो क्या होता है? ले। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ले। डीप स्नो ले ऑन द रेलवे ट्रैक, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड 10 क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स। जितना मैंने आपको बताया, अगर आप ये 10 क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ समझ गए हैं, इसी से रिलेटेड आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये 10 मार्क्स आपके श्योर हो गए। अगेन एक इसको कर लेते हैं, ये 5 मार्क्स हम लोग और अपने पॉकेट में कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट आएगा, ये आएगा, देखो ध्यान से। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। इसका भी आता है, एक सेंटेंस आपको देगा, बोलेगा उतना ही चेंज करो जितना का रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि कोई भी चीज आप चेंज कर दो, ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा है एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को लगता है कि यार मीनिंग तो सही है कि 5 लड़कों को छोड़ करके सभी लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग की बात हो रही है, वर्ब प्लूरल होगी, बट गलत है। हमेशा याद रखना कि व्हेन, हमेशा याद रखना कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, when two subjects are added with, are added with, as well as besides, except, in addition to, in addition to, and along with, together with, along with, together with, like, unlike, verb must come, verb
must come as per the first subject, as per the first subject, as per the first subject. अब ध्यान से सुनना एक बार, मैंने क्या पॉइंट लिखा है। मैंने बोला कि कभी भी अगर कोई दो सब्जेक्ट, कभी भी अगर कोई दो सब्जेक्ट किससे ऐड ऑन हो, एज वेल एज से, किससे जुड़े हो, एज वेल एज से, बिसाइड्स से, एक्सेप्ट से, इन एडिशन टू से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, लाइक से, अनलाइक से, उस केस में जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब कॉन्सेप्ट पर आओ, क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो क्वेश्चन को। एवरीवन एक्सेप्ट द फाइव बॉयज, एक्सेप्ट के पहले का सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, और एक्सेप्ट के बाद का सब्जेक्ट क्या है, द फाइव बॉयज, सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहां पे दो सब्जेक्ट किससे जुड़े रहे हैं, एक्सेप्ट से। तो जो वर्ब आएगी डियर, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और कभी भी जब सब्जेक्ट तुम्हारा एवरीवन हो, समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, हमेशा वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। आप कॉपी में लिख सकते हैं, इफ एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पे हम हैव हटा के क्या लिखेंगे, हैज। तो एवरीवन एक्सेप्ट द फाइव बॉयज हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन, ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, unless he does not return the library books। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, unless and until, इसके बारे में जान लो, इनके फीचर्स आप जान लो अगर आप नहीं जानते हो तो, ये आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। unless और until, देखो सबसे पहले unless क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव वर्ड होता है मतलब इसके अंदर ही नॉट छुपा होता है। दूसरा, ये कंडीशनल वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं। तीसरा, अनलेस हमेशा किसको बताता है, अनलेस हमेशा एक्शन को बताता है। किसको बताता है, एक्शन को बताता है। अंटिल पे आ जाओ, अंटिल भी एक तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब इसके अंदर ही नॉट छुपा होता है। दूसरा, ये कंडीशनल वर्ड होता है, मतलब शर्त को बताते हैं, शर्त को बताते हैं। तीसरा, जैसे अनलेस एक्शन को बताता है वैसे अंटिल किसको बताता है, अंटिल आपके टाइमिंग को बताता है। अंटिल किसको बताता है, आपके टाइमिंग को बताता है। पॉइंट क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा पता होने चाहिए कि भाई अनलेस अगर नेगेटिव वर्ड है तो ये अपने साथ नॉट नहीं लेगा, क्योंकि नॉट इसमें छिपा होता है, वही काम अंटिल में होता है। दूसरा, ये कंडीशनल वर्ड होता है। कंडीशनल वर्ड का मतलब होता है कि अपने साथ कभी भी शैल, विल, वॉज नहीं लेते। सेम फंडा उधर भी है। ये एक्शन को बताता है और वो टाइम को बताता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, अनलेस, सबसे पहले अनलेस क्या है, देखो नेगेटिव वर्ड है तो अपने साथ ये नॉट हटा देगा। और दूसरा, अनलेस वाले पोर्शन में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एम्फेसाइज करता है, जोर करता है। बेटर स्टेटमेंट बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को भी रिमूव करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। पॉइंट क्लियर, ओके। अब आ जाओ थर्ड पे, दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के एंडिंग में आपको पास्ट टाइमिंग अगर दिखती है, जैसे यहां पे क्या लिखा है, यस्टरडे, ये पास्ट टाइमिंग है, बीते हुए कल की बात कर रहा है। तो पास्ट टाइमिंग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट ये तुम्हारा क्या है, दे, हेल्पिंग वर्ब हटाओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। पॉइंट क्लियर हुआ, आया ना। तो यस्टरडे जब भी कभी आप देखो, या फिर आप जैसे इन 2024 की कोई बात कर दे, लास्ट सेंचुरी की बात कर दे, आई मीन कुछ भी जो पहले का है, वो हम पास्ट टाइमिंग अगर देखते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, योर आंसर इज रेप्लीट फ्रॉम एरर्स। रेप्लीट अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं लेता, क्या लेता है, विद लेता है। So now the last question, the book is missing from my room from yesterday। This question, ये question I'm giving you for homework section।
आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और आज के सेशन का रिव्यू आप जरूर देना कि आपको कैसा लगा। वी हैव कंप्लीटली डिस्कस्ड 15 क्वेश्चन इन टुडेज सेशन, जिसमें से 14 के मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स सब कुछ बता दिए। इस क्वेश्चन को आपको डिक्टेट करना है कमेंट बॉक्स में कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, देन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, और आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल जितना भी सिलेबस का पार्ट है इंग्लिश का, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।